Assalamu alaikum everyone. Welcome to our session about the Russian war against Ukraine. I'm Nadia Tasleem and I'm here with the third episode, which is about the economic fallout of the Ukrainian crisis. Because whenever we talk about the wars, we know that wars do have impacts on economies. So, of course, Russian war against Ukraine is going to have some economic repercussions, not only for Russia, Ukraine, and Europe, but also for the whole globe. So today we have to look into the economic consequences of this war. But before proceeding ahead with the economic consequences, we first need to go through the quick updates of the war, since the war still is going on. So we can't ignore and we can't actually skip the wrap-up of whatever is going on, and then we'll quickly switch to the topic that we are supposed to discuss today. So when we talk about the war, हमने war में देखा है कि चीजें उसी तरह से चल रही हैं. दोनों मुल्क आपस में मींस रशियन फोर्सेस बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी इंटर हो चुके हैं. आप इस मैप में देख सकते हैं, आपको जितने भी शेडेड एरियाज नजर आएंगे वहां पे रेजिस्टेंस हो रही है. रशियन एडवांसेस हैं ये सब, लेकिन इधर रेजिस्टेंस हो रही है. और रशिया ने ये क्लेम किया है कि इन द रीजन्स लाइक खार्किव एंड द रीजन्स लाइक Kherson in south, they already have somehow got military control. Bombing हो रही है. जो Zelensky he has been accusing Russia for bombing in the civilian areas and for killing large number of innocent people in Mariupol and in Kiev and in many other regions. और सिर्फ यूक्रेन वाले नहीं एक्यूज करे, बल्कि रशिया ह्यूमन राइट्स वॉच और बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी एक्यूज कर रही हैं फॉर somehow for killing a lot of people and for destroying a lot of civilian infrastructures. But the thing is that bombs can't discriminate between combatants and non-combatants. So this is something which is expected in a war. ठीक है. In the meantime, एक और चीज है कि उनका टॉक्स चल रही हैं दोनों मुल्कों के बीच में. अब फिलहाल राइट नाउ वो वीडियो के थ्रू चल रही हैं. That started on 14th of March, which was Monday. और but this time both leaders from both sides seem to be optimistic, and they are hoping that the talks will probably reach to some conclusion and will come up with the ceasefire and will come up with some arrangement between the two sides. और उसकी रीजन ये है कि 15 पॉइंट्स ड्राफ्ट है जिसके ऊपर डिस्कशन चल रही है और उसमें कुछ होप्स हैं कि थिंग्स विल समहाउ गेट बेटर. नाउ we have to highlight the economic consequences. और बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि मैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट करूं कि क्यों इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस इस वॉर के होंगे. उसमें पहली चीज ये है कि वॉर के अपने कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही होंगे, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी ऑलरेडी एक बड़े ट्रबल्ड फेज से गुजर रही है. दुनिया की इकोनॉमी 2020 से अभी तक मींस फॉर द लास्ट 2 years वर्ल्ड इकोनॉमी हैज बीन स्ट्रगलिंग टू डील विद द काइंड ऑफ चैलेंजेस that they had to face amidst this pandemic, which is COVID-19. तो छोटे मुल्कों की, बड़े मुल्कों की, हर जगह पे इकोनॉमीज ने बहुत बुरी तरह से सफर किया बिकॉज ऑफ COVID-19. कुछ इसकी डायरेक्ट कॉस्ट थी, जैसे कि आपको हॉस्पिटलाइज लोगों को होना पड़ा था और टेस्टिंग हो रही थी, इस तरह की चीजें. और कुछ इसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, जैसे ये कि प्रोडक्टिविटी वगैरह लूज हो रही है. तो मीन्स बाय बोथ मीन्स डायरेक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाए या इनडायरेक्ट कॉस्ट को, लेकिन एंड रिजल्ट ये था कि दुनिया की इकोनॉमीज बहुत बुरी तरह सफर कर रही थी. ह्यूमन कैपिटल का लॉस हो रहा था और सिस्टम्स का फेलियर होता रहा बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक. ठीक है. सो द वर्ल्ड वाज हार्डली ट्राइंग टू overcome the challenges that they have been into for the last 2 years, and now they were hoping that they will probably they will be able to overcome the challenges and they will be able to boost their economies. IMF की प्रोजेक्शन ये थी कि इस फर्स्ट क्वार्टर में इन्फ्लेशन का रेट ड्रॉप होना शुरू हो गया and things will improve now and economies are now performing better. However, now the same IMF has come up with a projection that inflation is going to increase and there would be serious downfall in the economies of the world, particularly of Europe. अब जाहिर है ये वॉर वो भी बहुत ही सेंसिटिव एरिया के अंदर हो रही है, यूरोप में हो रही है, और यूरोप एक बड़ा की रीजन है दुनिया का, तो नेचुरली उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं इस वॉर के, और बड़े डिफरेंट तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं. ठीक है. जब हम वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो 2-3 चीजें जो मैं हाईलाइट करूंगी. एक के कॉन्सिक्वेंसेस रशिया के अपने लिए क्या है,
और क्यों होने। दूसरा ये कि लार्जली ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जिसमें जाहिर है वो मुल्क जो रशिया के साथ समहाउ कनेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमीज, या जो रशिया के ऊपर रिलाई कर रही है इन वन वे और द अदर, तो उनके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा ग्रेव होंगे। और जो मुल्क रशिया के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो उन पे कॉन्सिक्वेंसेस जरा लॉन्ग टर्म में होंगे और मे बी उतने सीरियस ना हो। तो रशिया क्योंकि खुद दुनिया के अंदर बहुत एक्टिव प्लेयर नहीं है, मींस रशिया इज एक्चुअली नॉट लाइक चाइना। चाइना आपका बहुत ही एक की इकोनॉमिक प्लेयर है, बहुत ही ग्लोबल इकोनॉमिक प्लेयर है, तो रशिया इज नॉट लाइक दैट। इसलिए रशिया को रशिया की उस लेवल की वेटेज नहीं है दुनिया की इकोनॉमी में, और इसीलिए रशिया की वॉर की वजह से बहुत अलग तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हमें नजर आएंगे इन डिफरेंट रीजन्स, बिकॉज जो रशिया के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और जो रशिया के साथ इन वन वे और द अदर कनेक्टेड है, उनके ऊपर सारे बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन बाकी दुनिया के ऊपर वो कॉन्सिक्वेंसेस अलग तरीके से बाकी दुनिया की इकोनॉमी को हिट करेंगे, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ। जब हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो उसमें एक वजह यह है कि रशिया के ऊपर जब वॉर होती है तो सबसे पहले सैंक्शंस लगाई गई, और सैंक्शंस का इम्पैक्ट जाहिर है रशिया को खुद भी बहुत सीरियसली फेस करना पड़ा, और कुछ इम्पैक्ट बाकी दुनिया भी देखेगी। लेकिन रशिया के अपने ऊपर जो बहुत सीरियस इम्पैक्ट हुआ है वो बेसिकली इकोनॉमिक सैंक्शंस का होता है। और इकोनॉमिक सैंक्शंस में एक जो स्टेप लिया गया दैट वाज टू फ्रीज रशियन सेंट्रल बैंक एसेट्स, जिससे मुराद ये है कि रशिया के जो फॉरेन करेंसी में एसेट्स मौजूद हैं दुनिया के अंदर, उनको फ्रीज कर दिया गया ऑन इमीडिएट बेसिस, ताकि रशिया को रशिया हैज बीन डिनाइड द एक्सेस टू इट्स ओन एसेट्स दैट आर देयर ईदर इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स और इन द फॉर्म ऑफ यूरोस। जैसे रशिया के तकरीबन कोई $500 बिलियन के करीब फॉरेन एसेट्स मौजूद हैं, बट रशिया हैज बीन डिनाइड द एक्सेस टू दोज एसेट्स। ठीक है, तो नेचुरली रशिया की इकोनॉमी ने एकदम से इसकी वजह से सफर किया, व्हिच हैड डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑन द समहाउ वैल्यू ऑफ रबल। रशियन करेंसी जो है उसकी वैल्यू एकदम डिक्लाइन होना शुरू हो गई, और जाहिर है पब्लिक की सफरिंग इसमें बढ़ जाती है। इसके साथ साथ रशिया के जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं और कुछ स्टेट ओन बैंक्स हैं, उनको भी एकदम से उनके एसेट्स को भी दुनिया में फ्रीज कर दिया गया, ताकि रशिया को किसी भी किस्म की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रशिया के साथ ना की जा सके, एंड दैट आल्सो हैज कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द रशियन इकोनॉमी राइट नाउ। और इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट स्टेप है दैट वाज द पार्शियल रिस्ट्रिक्शन टू द मींस रशिया की जो एक्सेस है टू द इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, which is SWIFT, and SWIFT stands for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, जो बेसिकली कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है बल्कि एक मैसेजिंग का सिस्टम है, जिसने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बहुत इजी बना दिया है, क्योंकि कोई 11,000 के करीब इंस्टीट्यूशन है जो कि कनेक्टेड है इस सिस्टम के साथ, और वो आपका जो ट्रांजैक्शन का प्रोसेस होता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर और फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का, उसको ये बहुत स्मूथ बना देते हैं। तो उसको भी रशिया has been denied, partially denied the access to it, और उसकी वजह से भी नेचुरली रशिया का प्रोसेस, इकोनॉमिक प्रोसेस स्लो हो गया। और जर्मनी ने रशिया के साथ जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है उसको भी होल्ड किया हुआ है, तो नेचुरली रशिया के ऊपर तो इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं। दूसरा रशियन इकोनॉमी के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस जो हमें नजर आते हैं वो इसलिए भी होने हैं कि रशिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री फर्म्स ने, कंपनीज ने, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड, आइकिया, गूगल, एप्पल, पेप्सी, कोक, इन सब ने अपने मैनेवर्स को हॉल्ट कर दिया है, और उसका भी नेचुरली एक कॉन्सिक्वेंस हमें नजर आता है रशिया की इकोनॉमी के ऊपर। इवन जो कार एक्सपोर्ट्स हैव बीन सस्पेंडेड टू रशिया, और मूवीज रिलीज नहीं हो रही। एप्पल को लेकर रशियन जो लोग हैं वो बहुत कंसर्न हैं कि अगर एप्पल नहीं रशिया में आ रहा तो इट वुड बी हार्ड फॉर द यंग पॉपुलेशन ऑफ रशिया इवन टू सर्वाइव, जो आजकल लोगों को ऑब्सेशन है विद एप्पल। So here you can see this picture, and this girl with teary eyes said that everything is going to hell because of the kind of consequences they are facing due to the war that is going on. ठीक है, so इस वजह से भी रशिया की इकोनॉमी हिट हो रही है, और रशिया की इकोनॉमी के बारे में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च है, उनकी प्रिडिक्शन ये है कि रशिया का जीडीपी will fall by 1.5% by the end of 2022 and 2.6% by the end of 2023. और रशिया के बारे में ये भी assumptions हैं कि रशिया की इकोनॉमी will shrink by probably more than 7%, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए रशिया के ऊपर तो बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। रबल की प्राइस मैंने पहले आपको कहा कि डिक्लाइन हो रही है बहुत क्लियरली,
पिछले एक हफ्ते में हम देखें तो बहुत फ्लक्चुएट करती रही, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। और जब आपकी करेंसी स्टेबल नहीं होती है और जब दुनिया के अंदर वॉर लाइक सिचुएशन होती है जिसमें अ लॉट ऑफ पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स ऑन डे टू डे बेसिस, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती हैं, स्टॉक एक्सचेंज सफर करती है बिकॉज ऑफ इट। और हमें एक सदी पहले जाएं और वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस को रिकॉल करें तो वी कैन स्टिल रिकॉल कि वर्ल्ड वॉर के बाद हालांकि दुनिया ने एक इकोनॉमिक बूस्ट देखा था, उसके बावजूद भी इन 1929 द वर्ल्ड वाज हिट बाय अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस जिसको ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन कहा गया। हालांकि उस जमाने में दुनिया की इकोनॉमी इतनी इंटीग्रेटेड नहीं थी द वे बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन द वर्ल्ड इकोनॉमी नाउ हैज गॉट इंटीग्रेटेड। तो इस इंटीग्रेटेड इकोनॉमी में अगर दुनिया के मुल्क जैसे रशिया खुद सफर कर रहा है या यूक्रेन सफर कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन इज वॉर टॉर्न कंट्री राइट नाउ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं, यूक्रेन में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यूक्रेन की ट्रेड दुनिया के साथ मुश्किल में पड़ गई है, यूक्रेन को फंडिंग आ रही है जैसे IMF हैज रिसेंटली claimed to provide Ukraine with $1.4 billion as emergency funding. However, most of the funds that Ukraine is receiving from the world, they have to invest it for the, obviously, betterment of their military equipments. तो उसको वो improve करें, इसलिए उनकी economy better नहीं हो रही इतनी aid और assistance के बावजूद भी। तो ये मुल्क दोनों तो हिट हुए, लेकिन दुनिया में मींस यूरोपियन कंट्रीज आर बीइंग हिट और उनके साथ साथ वो मुल्क मींस इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका व्हिच हैज बीन की इंपोर्ट पार्टनर ऑफ रशिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, all of these countries they are key import partners of Russia, so their economies have to suffer a lot because of the ongoing situation। और क्योंकि उनके हालात रशिया के साथ डिटेरियोरेट हो रहे हैं तो उनको यूएस ने तो क्लियर कट सैंक्शंस लगा दी, लेकिन बाकी मुल्क भी रशिया के साथ they are not now interacting with Russia at the same scale the way they have been interacting prior to the war, or things will keep deteriorating in this particular context। तो naturally ये सारे मुल्कों की इकोनॉमी सफर करेंगे और क्योंकि दुनिया की इकोनॉमीज इंटीग्रेटेड हैं तो जब इतने मुल्कों की इकोनॉमी सफर करेंगी तो इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि बाकी रिपलिंग इफेक्ट होगा और बाकी दुनिया की इकोनॉमीज भी सफर करेंगी, क्योंकि रशिया के अंदर ही हम देखें तो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अब दुनिया पूरी के अंदर भी अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि रेफ्यूजीज आपके इंक्रीज हो रहे हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं जो कि एक एस्टिमेट के मुताबिक $40 पर बैरल प्रोबेबली इंक्रीज होंगी। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि हर चीज में हमें नजर आएगा एक डाउनग्रेड, एक डाउनफॉल, ठीक है, रिसेशन दुनिया के अंदर दिखाई दे रहा है। आपकी जो कमोडिटी प्राइसेस होती हैं लाइक ऑयल, नेचुरल गैस, व्हीट, कॉर्न, मेटल, जो भी रशिया से कनेक्टेड प्रोडक्ट्स है, नेचुरली उनकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी। इसका इम्पैक्ट होगा कि लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी, which is going to slow down the demand and ultimately is going to have spillover impact even on the international trade. Inflation will increase all across the globe. Countries जो कि रशिया के साथ खास तौर पे बहुत ज्यादा ट्रेड में इंगेज हैं और जो रशिया से जहां पे रेमिटेंसेस आ रहे हैं, तो उन मुल्कों में खास तौर पे जिसमें ईस्ट यूरोप, सेंट्रल एशिया वगैरह आते हैं, उनकी सफरिंग नेचुरली एक बहुत अलग स्केल की होगी। लेकिन क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड है तो उनकी वजह से बाकी दुनिया भी, जाहिर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन मींस हर जगह की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में स्प्रेड हुई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह अगर होती है तो दुनिया की इकोनॉमी एंड द पब्लिक ऑल अक्रॉस द ग्लोब इज गोइंग टू सफर बिकॉज ऑफ इट। रशिया और की इकोनॉमी के अंदर जो मींस जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है रशियन और यूक्रेनियन वॉर के, उनमें हम की एरियाज अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो हमें ये नजर आता है कि स्टॉक एक्सचेंज सफर कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स मींस उनका डाउनफॉल हो रहा है, प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसके अलावा इवन अदर कमोडिटीज, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज आर इंक्रीजिंग, इंडस्ट्रीज सफर करेंगी। ऑयल प्राइसेस जो पहले से ही बहुत बढ़ी हुई थी और रशिया क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है तो नेचुरली देयर प्राइस विल इंक्रीज फर्दर। फिर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं लाइक पैलेडियम या कुछ मेटल्स हैं जिनको जैसे पिकल, जिनको रशिया निकल सॉरी जिनको रशिया एक्सपोर्ट करते हैं, जिनका रशिया की एक्सपोर्टर है, तो नेचुरली उनकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी और जिन प्रोडक्ट्स में वो यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस पैलेडियम इज बीइंग यूज्ड इन मोबाइल फोन्स एंड इवन इन ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट सिस्टम्स, तो नेचुरली उन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ेंगी, उनकी इंडस्ट्री सफर करेंगी। सो बिसाइड्स दैट बैंक्स, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस में बैंक्स आर इंडल्ज्ड, तो नेचुरली बैंक्स के ऑपरेशन स्पेस की वजह से फर्क पड़ रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा विजिबल हो जाएगा।
यूरोप बहुत ज्यादा क्लियरली सफर करेगा, इसीलिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिसर्च है उनके मुताबिक यूरोपियन यूनियन का जीडीपी विल फॉल बाय 0.9% by 2022 and 1.5% by 2023, and their inflation will increase by 5.5% in 2022 and by 2.1% in 2023. उसकी वजह यह है कि यूरोप gets nearly 40% of its natural gas and 20% of its oil from Russia. So naturally they are going to suffer because of it. इसके अलावा एक और चीज जो कि यूक्रेन रशिया दोनों जिसके मेजर सप्लायर्स हैं, दैट इज वीट एंड यूक्रेन इवन वीट यूक्रेन जो सनफ्लावर से के सीड से जो सीड ऑयल बनता है उसका भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो वो मुल्क जो बहुत ज्यादा हैवीली डिपेंड करते हैं रशिया और यूक्रेन के ऊपर फॉर देयर वीट कंजम्पशन एंड फॉर देयर वीट इंपोर्ट, वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। एंड दे इंक्लूड द कंट्रीज लाइक इजिप्ट एंड टर्की दैट गेट 70% of their grain from these two countries. उसके अलावा मिडल ईस्ट और अफ्रीका लार्जली वीट और कॉर्न जो है वो यूक्रेन से एक्सपोर्ट कर रहा है और मींस इंपोर्ट कर रहा है, और इवन फ्रॉम सम ऑफ द कंट्रीज आर इंपोर्टिंग इट फ्रॉम रशिया एज वेल। इस तरह लेबनान विद इन द मिडल ईस्ट जो कि बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं ऑन यूक्रेन फॉर वीट एंड दे आर आल्सो गोइंग टू सफर अ लॉट। वहां पे ऑलरेडी फूड क्राइसिस चल रहा था तो वो और ज्यादा एनहांस होगा, इसलिए इवन द रीजन्स लाइक अफ्रीका are going to get hit because of this economic recession. अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च का ये एस्टिमेट देखें कि ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होंगे, तो उसमें हमें ये नजर आता है कि जीडीपी ग्लोबल जीडीपी विल प्रोबेबली फॉल बाय 0.5% in 2022 and 1% in 2023, and inflation will increase by 3% in 2022 and 2% further in 2023. तो इस तरह के इम्पैक्ट्स अगर होते हैं तो ऑब्वियसली इकोनॉमी कंट्रीज विल नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर देयर इकोनॉमीज, और अभी मजीद हम मींस नथिंग कैन बी सेड विद सर्टेनिटी प्राइमरीली बिकॉज द वॉर स्टिल इज गोइंग ऑन। तो जब वॉर खत्म हो जाएगी तो फिर एग्जैक्ट एवेल्युएशन की जा सकेगी और एग्जैक्ट एनालिसिस हम दे सकेंगे। बट आई होप you could get something out of it, and with this we come to an end. Thank you so much for staying with us and for showing patience. I wish you all the best in whatever you do. Stay blessed. May Allah bless you. Allah Hafiz.